कुछ और. So students of 9th class and particularly of future 10th class, as you know that we have started our chapter name as electricity. We discuss about the current, potential difference, Ohm's law, and previously the important thing that we discussed about was the resistance. The device, the resistance means the opposition offered, and the device which offers the resistance is called as resistor. So without wasting not that much time, let's back to our screen. अपनी screen पे आते हैं और अपनी screen पे काम करना शुरू करते हैं. Okay, so what is the resistor? One thing that question जो आज एक put up हुआ है, तो एक बार उस question को लिख ही लेते हैं. Resistor. The resistor. What is resistor? The device which offers the resistance, वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट ऑफर करता है, जो रुकावट पैदा करता है फ्लो ऑफ चार्ज में, हम उस डिवाइस को क्या बुलाते हैं? रेजिस्टर. ओके, रेजिस्टर का जो सिंबल होने वाला है, दैट सिंबल वुड बी इन दिस मैनर. This is the symbol for resistor. Please everyone इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. This is the symbolic representation of the resistor. Okay. Now one more question has been asked. Sir, what is the rheostat? Okay. तो rheostat क्या होता है? Please इसको थोड़ा सा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. Rheostat, the variable resistor. Please इस बात पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. What? The variable resistor is known as rheostat. Means एक ऐसा resistor जिसकी opposition को हम change कर सकते हैं. And the symbolic representation for such type of resistor is that. This is the symbol for the rheostat. Okay, so this arrow, ये जो arrow आपके सामने लगाया गया है, that arrow represents variable, और बाकी resistors का symbol यही है. ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातें थी. नाउ द मेन टॉपिक फॉर विच दैट वी मीट इन दिस लेक्चर, जिसके लिए हम इस लेक्चर में मिले हैं, एंड दैट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स. रजिस्टर्स मींस जो अपोजिशन लगाते हैं, और आज हम उनके कॉम्बिनेशंस को पढ़ने वाले हैं. And the first combination that we are going to study is series combination. पहला combination कौन सा पढ़ेंगे हम? We are going to study with the series combination. Okay, तो पहले इस पे ध्यान देंगे. Let's suppose we have 3 resistor. So everyone, let us consider 3 resistors. 3 resistors मैं consider कर रहा हूं. Please सारे बच्चे ध्यान से रखेंगे. 3 resistor. R1, R2 and R3. 3 different resistors. फर्स्ट का रेजिस्टेंस है R1, सेकंड का रेजिस्टेंस है R2 एंड थर्ड का रेजिस्टेंस है R3. So let us connect in a series connection. This is our first resistor R1, which is connected with the second resistor R2, which is connected with the third resistor R3. This type of connection is known as the series connection. हम इस टाइप के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बुलाते हैं. ओके, यानी एक के बाद एक. हिंदी में बोले तो लेट्स सपोज जैसे कि इमेजिन दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. ओके, ये हमारा बी पॉइंट है. एवरीवन ध्यान से देखेंगे. पॉइंट ए एंड बी. क्लियर है बेटा? एवरीवन यहां तक प्लीज. मुझे किसी का आवाज आ रहा है? इज देयर एनी इश्यू? डन है? चलिए, सो बैक टू द स्क्रीन. व्हाट वी गेट हियर, हमें क्या मिला यहां पे? ध्यान से देखते हैं. सो वी हैव द 2 रजिस्टर्स. ओके, 3 रजिस्टर ए, बी एंड सी. सो ए इज द वन एंड ऑफ द रजिस्टर, बट बी इज द कॉमन एंड. बी जो है वो कॉमन एंड है. किसके बीच में? R1 एंड R2 में. ओके, यानी R1 एंड R2 हैज वन कॉमन एंड. R1 और R2 में एक पॉइंट कॉमन है, विच वाज B. सिमिलरली वी हैव अ C एंड. ये C वाले पॉइंट को देखिए. C is the common point of R2 and R3, and this is my D. So now the point is that we can say R1, R2 and R3 are the series connection,
हम उन रजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन में कॉल कर सकते हैं जिन रजिस्टर्स का कनेक्शन वन एंड टू अनदर एंड है, एक के बाद एक। R1 का एक एंड R2 के दूसरे के एंड के साथ है, R2 का जो दूसरा एंड है वो R3 के एंड के साथ है। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड एज सीरीज कनेक्शन। एंड लेट अस कंसीडर वी कनेक्टेड all the three resistors across a battery of potential V, बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, and because of that battery I amount of current is flowing through that circuit. Okay, so हमारा net potential क्या है? The net potential is V. So what is V? चलिए डिफाइन करते हैं। So V stands for net potential. नेट मींस टोटल पोटेंशियल हमने बैटरी से कितना प्रोवाइड करवाया, नेट वोल्टेज भी बुला सकते हैं। व्हाट इज आई स्टैंड्स फॉर? आई स्टैंड्स फॉर द नेट करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय आई। नाउ एवरीवन, सारे बच्चे एक स्टोरी लाइन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे दैट फ्रॉम दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट फ्लो किया? आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया। अब ये जो आई अमाउंट ऑफ करंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये किस में से पास होगा? इट विल पास थ्रू दी R1। तो पहले आई अमाउंट ऑफ करंट किस में जाएगा? R1 में जाएगा। देन आफ्टर क्रॉसिंग द R1 द सेम अमाउंट ऑफ करंट किस में जाएगा? R2 में जाएगा। एंड R2 को क्रॉस करके अब वो किस में जाएगा? I3, एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू द बैटरी। एंड बाय दिस मैनर आपके सर्किट में करंट पूरा का पूरा फ्लो हुआ। ठीक है, तो लास्ट वाले में हमारे पास जो थर्ड रजिस्टर है उसमें हमारे पास कितना करंट जाएगा? आई ही जाने वाला है। सो ये ऐसा है जैसे कि इमेजिन दैट कि आपने पॉजिटिव टर्मिनल से गाड़ी चलाई, ठीक है, गाड़ी चलाई या कुछ भी है आपके पास, मान लीजिए 3 व्हीलर्स हैं, 3 गाड़ियां हैं, ये रही 3 गाड़ियां आपकी। इमेजिन दैट फर्स्टली ऑल द 3 व्हीकल विल पास थ्रू R1। तो R1 वाले स्टॉप से, R1 को एक स्टॉप मानिए, R1 R2 R3 क्या है? रेजिस्टेंस है, रुकावट है। तो ये तीनों आपके स्टॉप मान लीजिए, रुकावट है आपकी। तो आपकी तीनों गाड़ियां पहले किससे पास होगी? R1 से। तो R1 से कितनी गाड़ियां पास हुई? जितनी टोटल थी, जो कि आई अमाउंट ऑफ करंट था। फिर R2 से भी वही पास होंगी और फिर R3 से भी वही पास होंगी। तो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे पास? दिस इज बीन द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर सीरीज। सीरीज का इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है that in series connection all through the resistors the current is same। रिजल्ट क्या है कि जो जो रजिस्टर सीरीज में होंगे, जैसे कि R1 R2 और R3 सीरीज में है, तो सीरीज कनेक्शन में हर रजिस्टर से क्या सेम जाएगा? करंट सेम जाएगा। जाएगा, ओके। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी ऑल आर फेमिलियर, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये हम सब जानते हैं। तो देखिए आई सब में सेम है एवरीवन, बट आर सबका डिफरेंट है। हमने R1 R2 R3 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स लिए थे, तो तीनों के रेजिस्टेंस अलग है। तो इसका मतलब करंट सबका सेम है, बट आर की वैल्यू सबकी डिफरेंट है। तो सबका वोल्टेज भी सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? द वोल्टेज फॉर ऑल द 3 रजिस्टर्स वुड ऑल्सो डिफरेंट। क्या रहेगा वोल्टेज? वोल्टेज भी इनका डिफरेंट रहेगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट इन सीरीज कनेक्शन करंट इज ऑलवेज सेम एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। तो लेट सपोज R1 की वोल्टेज को क्या मान ले? V1। R2 की वोल्टेज को क्या मान ले? V2। और R3 की वोल्टेज को क्या मान ले? V3। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल ऑफ R1। R1 के पोटेंशियल को निकालते हैं। तो ओम्स लॉ लगाइए R1 के लिए, केवल R1 की तरफ ध्यान होना चाहिए। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो R1 के पास करंट कितना है? I, क्योंकि जो कि सेम था, जो कि उतना ही था जो कि टोटल था। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस? R1। तो क्या इक्वेशन बना? V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। सिमिलरली फॉर R2 सेकेंड रजिस्टर के लिए V2 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? I इंटू R2। आई होप ये पॉइंट जल्दी क्लियर हुआ। एंड सिमिलरली फॉर I3 फॉर R3 थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 क्या बनेगा? I इंटू R3। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। एम आई क्लियर अप टू देयर? यहां तक क्लियर है?
कि हमें क्या पता चला, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड रिजल्ट है बेटा। सीरीज में करंट सेम रहता है बट वोल्टेज डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो जो जो रजिस्टर सीरीज में होंगे सबको करंट बराबर बराबर मिलेगा, सेम मिलेगा, जो कि उतना ही है जितना टोटल है। इमेजिन दैट द टोटल करंट इज 2 एम्पियर, तो फर्स्ट से भी 2 जाएगा, सेकंड से भी 2 जाएगा, थर्ड से भी 2 जाएगा, बट सबकी वोल्टेज अलग अलग होगी क्योंकि हमने सबका रजिस्टर अलग अलग लिया है अभी के लिए, ठीक है। बाद में देखते हैं कि अगर तीनों का रजिस्टर सेम हुआ तो क्या होगा, बट अभी के लिए सबको डिफरेंट है। तो व्हाट इज नेट पोटेंशियल? तो टोटल पोटेंशियल क्या होने वाला है उसमें हेल्प करो। सो टोटल पोटेंशियल कितना लिया था हम लोगों ने, V। सो टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ऑफ 1 प्लस पोटेंशियल ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल ऑफ 3। भाई फर्स्ट के पास वोल्टेज कितनी गई, V1 गई, सेकंड के पास V2 गई, थर्ड के पास V3 गया, और टोटल कितना लिया था, V। तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3। कॉल द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3। V1 V2 और V3 की वैल्यू बुलाइए इक्वेशन 1 2 और 3 से। इट विल बी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, and what is common, I is common, so what we left, R1 plus R2 plus R3। am I clear for the equation number 4? इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारा, जो हमारे पास आया वो ये आया, नेट वोल्टेज। नाउ देयर इज समथिंग डिफरेंट जो हम यहां पे एज्यूम करने वाले, ध्यान से देखना यहां पे। लेट अस कंसीडर एन इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान से देखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, एक ऐसा सर्किट एज्यूम करते हैं जो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल इक्वल है। लेट अस कंसीडर एक ऐसा सर्किट जिसका रेजिस्टेंस कितना है, RS। उसको उतना ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया जितना बैटरी से आपने पहले कनेक्ट किया, विच वॉज V, और उसमें से करंट भी I जा रहा था। ये वाला पॉइंट समझना। द डायग्राम विच इज इन अ कलर मोड, ये जो डायग्राम हमारे पास कलर मोड में, इसमें 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 और R3। ये तीनों कुछ रुकावट लगाते हैं आपके सर्किट में, जिसकी वजह से सर्किट में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। अब उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्लैक डायग्राम थ्रू द सेम वोल्टेज, बट ये सारा करंट या यही वोल्टेज और यही करंट एक अकेला रजिस्टर काम कर रहा है। तो इक्विवेलेंट है, जहां पे ये तीनों मिलके एक काम कर रहे थे वहां पे अकेला ये काम करेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ इक्विवेलेंट, यानी नेट या टोटल कुछ भी बुला लीजिए। तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाओगे, V इज इक्वल टू I इंटू RS। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 5। नाउ एवरी स्टूडेंट वेरी मच केयरफुली ध्यान देंगे। इक्वेशन 4 हमें क्या दे रहा है, V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। V स्टैंड्स फॉर नेट पोटेंशियल, I स्टैंड्स फॉर नेट करंट, जो कि सबके पास कॉमन था। सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट करंट मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3। यहां पे भी क्या फॉर्मूला बन रहा है इक्वेशन 5 में, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट करंट मल्टीप्लाई बाय RS इज रिप्रेजेंटिंग नेट रेजिस्टेंस। RS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, RS इज रिप्रेजेंटिंग नेट रेजिस्टेंस, और यू मे ऑल्सो कॉल दिस एज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम इसे क्या बुला सकते हैं, इक्विवेलेंट, यानी जहां पे ये तीनों मिलके काम कर रहे थे वहां पे अकेला RS काम करेगा। सो इफ वी कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, ध्यान से सारे बच्चे, अगर बेटा हम इक्वेशन 4 और 5 को अगर कंपेयर करते हैं तो बताइए RS की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। what we get in the final result, the final result that we got is RS is equal to R1 plus R2 plus R3। So what is the final, that the net resistance in series, अगर हमारे पास 3 रजिस्टर सीरीज कनेक्शन में है तो उसका नेट अपोजिशन कितना होगा, नेट रुकावट कितनी होगी, R1 plus R2 plus R3। ओके, हेयर वी कंसीडर ओनली 3 रजिस्टर्स। हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर्स कंसीडर किए हैं। आपके लिए 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द फॉर्मूला वुड बिकम, इफ वी हैव मोर, R1 plus R2 plus R3 plus dot dot dot,
डॉट डॉट का मतलब इट कैन बी इन अ फ्यूचर, ये आगे भी बढ़ सकता है जितने रजिस्टर आप लगाना चाहें। एम आई क्लियर? Okay, so one thing that I want to ask everyone, am I clear with the series connection? क्या सीरीज कनेक्शन में सबके लिए ओके है? प्लीज बेटा जी, एनी इश्यू विद द सीरीज कनेक्शन प्लीज जस्ट लेट मी नो। सो सीरीज कनेक्शन में हमने दो चीज सीखा है, मैं वापस से आपकी स्क्रीन पे जा रहा हूं और हम अपनी स्क्रीन को एक बार वापस से देखेंगे। सो व्हाट वी लर्न इन द सीरीज कनेक्शन? इन द सीरीज कनेक्शन वी लर्न दैट इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम, वोल्टेज इज डिफरेंट, यानी सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग रहती है, और सीरीज कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका एल्जेब्रिक सम करके आता है। क्लियर है? ओके, so with that point now we are going to proceed with the next, which is parallel connection. So there is second type of connection that we want to study, and that second connection is called as parallel connection. इस पे थोड़ा सा ध्यान देखें। Again we are going to consider three resistors, the same three resistors I am going to consider, but this time we are going to connect in a some manner, different manner. ध्यान से देखेंगे। Let's suppose this is R1, this one is R2, and this one is R3. Okay, and these are connected in this manner. Okay, so how they are connected? Check this out. Okay, the one end of the R1 is A, the another end of R1 is B. ठीक है? ओके, R1 का जो वन एंड है वो R2 के दूसरे एंड के साथ देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग दैट ग्रीन लाइट? ओके, R1 का जो दूसरा एंड है वो R2 के साथ भी देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है। सीरीज में क्या हो रहा था? सीरीज में सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सीरीज में ये हो रहा था दैट R1 का एक एंड अकेला था, बट R1 का जो दूसरा एंड है वो R2 के साथ कॉमन था, यानी वहां पे एक एंड कॉमन था। कितना एंड कॉमन था? वन एंड कॉमन, वन एंड इज कॉमन। अगर किसी दो रजिस्टर्स में, प्लीज आगे आपको सीरीज और पैरेलल देखने का तरीका सिखा रहा हूं, अगर किसी दो रजिस्टर में एक एंड कॉमन है देन वी कॉल दैट एज अ सीरीज कनेक्शन। बट किन्हीं रजिस्टर्स में अगर उसके दोनों एंड कॉमन है, कौन से दोनों? देखो R1 का एक एंड R2 के एक एंड के साथ है, R2 का दूसरा है। ऐसे ही आप R3 को देखिए, R3 का भी एक एंड R2 के साथ है जो कि R1 के साथ है, और R3 का दूसरा एंड है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, लेट अस कंसीडर दिस एज अ कैपिटल A and let us consider this as a capital B. So capital A and capital B are the common end. ये क्या है? कॉमन एंड है। और रजिस्टर के कितने एंड होते हैं? दो एंड होते हैं। तो दिस इज R1 एंड दिस वन इज R2। चेक दिस आउट, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो पैरेलल कनेक्शन कब बनाएंगे? जब उनके दो एंड कॉमन होंगे। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? Whenever the two ends are common, we called such type of connection as a parallel. तो ये क्या कहलाएगा? ये पैरेलल कहलाएगा। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा, बिकॉज वहां पे एक एंड कॉमन है। तो एक एंड अगर कॉमन है, एक के बाद एक है, वी कॉल दैट एज अ सीरीज, बट जिसमें दोनों एंड कॉमन हो वी कॉल दैट एज अ पैरेलल। ठीक है? और मोर वी विल प्रैक्टिस फॉर द न्यूमेरिकल, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। आप सीरीज पैरेलल का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यू आर गोइंग टू बी वेरी फेमिलियर, और आपकी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। ये वैसा ही है जैसे आप लोगों ने प्राइमरी क्लास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन को करना सीखा। देखो, ऐड करना सबको आ जाता है, बट आपके टीचर्स आपको मल्टीपल टाइम्स एडिशन के अलग अलग न्यूमेरिकल देते हैं। हाँ, उस समय आप बोर होते हैं, सर एडिशन तो हम सीख गए हैं, आप बार बार एडिशन के न्यूमेरिकल क्यों दे रहे हो? बिकॉज जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल करते हो एडिशन के, आप उतनी फ्लुएंसी से जल्दी करते हो, आपकी स्पीड बढ़ती है, और यही हम लोग आगे रखेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए सीरीज पैरेलल समझ में आया? किसे सीरीज बुलाएंगे किसी पैरेलल में, और हम न्यूमेरिकल में इसे चलते रहेंगे। ठीक है? सो आई एम गोइंग टू रब दैट। तो ये हमारा डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, ये तो बस केवल समझाने के लिए था। ठीक है? सो इन सीरीज कनेक्शन we have one end common, and in parallel connection we have both ends common. So we have three resistors, R1, R2 and R3, and they are connected across
लेट्स सपोज द बैटरी विद द पोटेंशियल डिफरेंस V। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा? द पोटेंशियल डिफरेंस वाज V। अब एक और चीज ध्यान से देखेंगे, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद A पॉइंट, हाँ कि ना, है ना, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द B पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना? V। V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। A और B के बीच में डिफरेंस V ही है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव A के साथ है, नेगेटिव B के साथ है। अब देखिए, A और B में वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज का अंतर V वोल्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल ले लेते फॉर अ मोमेंट। तो A और B में 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो A और B के अक्रॉस कौन कनेक्टेड है? R1। R1 कनेक्टेड है ना A के साथ भी और B के साथ भी, तो R1 के पास भी कितनी वोल्टेज होगी? 2 वोल्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि R1 A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है और A और B बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो जो बैटरी का वोल्टेज वही AB का वोल्टेज, और जो AB का वोल्टेज वही R1 का वोल्टेज। अब बताइए, A और B के अक्रॉस और कौन कनेक्टेड है? A और B के अक्रॉस R2 कनेक्टेड है, तो उसके पास भी वोल्टेज V जाएगी। और A और B के अक्रॉस हमारा R3 भी कनेक्टेड था, तो उसके पास भी वोल्टेज V ही जाएगा। तो क्या सीखा हम लोगों ने यहां से? क्या सीखा? हमारा रिजल्ट क्या है बेटा यहां पे? द रिजल्ट इज दैट इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम। जब भी कोई भी रजिस्टर या कोई भी डिवाइसेस पैरेलल कनेक्शन में होते हैं तो उनमें वोल्टेज सेम रहता है, बट क्या चीज सेम नहीं रहेगा? करंट सेम नहीं रहेगा। भाई क्यों सेम नहीं रहेगा? चेकआउट करें, क्यों नहीं सेम रहने वाला? एज पर द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। होता है कि नहीं होता? ओके, V सब में सेम है बेटा, तो R के साथ आप इनवर्सली हो गए। अब देखिए, सबका रेजिस्टेंस डिफरेंट है, ऑल हैव द डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स, और अगर सबका रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो सबके पास करंट भी डिफरेंट। लेट्स सपोज R1 के पास करंट है I1, R2 के पास करंट है I2 और R3 के पास करंट है I3, ठीक है। तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट करंट ले लिया। ओके, तो दिस इज आर today's second result. What is that second result? Sir, in parallel connection, voltage is always same, but current is different. सीरीज में क्या था? सीरीज में करंट सेम होता है बट वोल्टेज अलग अलग होती है, बट पैरेलल में ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसे हाईलाइट कर लिया। तो चलिए अब स्टडी करना शुरू करें फॉर R1। अब क्या पढ़े R1 का? भाई इस बार क्या चीज डिफरेंट है? इस बार करंट डिफरेंट है, तो करंट को स्टडी करेंगे। सो फॉर R1 व्हाट इज द करंट? द करंट इज I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1। एम आई क्लियर विद द इक्वेशन 1? I1 क्या होगा? V डिवाइडेड बाय R1, ये रहा ना फॉर्मूला, V बाय R। सिमिलरली I2 क्या होगा? V डिवाइडेड बाय R2। डन। एंड I3 क्या होने वाला है? V डिवाइडेड बाय R3। एम आई क्लियर टू दैट? तो इस बार हमने I1 I2 I3 निकाला, जहां पे लास्ट स्क्रीन में हमने V1 V2 V3 निकाला था। क्यों निकाला था वोल्टेज? क्योंकि वहां पे वोल्टेज अलग अलग थी, करंट तो सब में सेम ही था, और दिस टाइम द करंट इज डिफरेंट, वोल्टेज इज सेम। क्लियर है? तो प्रोसीड करें। सो व्हाट इज द नेट करंट? हमारे पास नेट करंट क्या होने वाला है भाई? ध्यान से देखेंगे, द नेट करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज आवर टोटल करंट। भाई फर्स्ट से आया I1, सेकंड से आया I2, थर्ड से आया I3, और तीनों मिलके क्या करंट बनाएंगे? लेट्स सपोज I। तो प्लीज I1 I2 I3 की वैल्यू बताना इक्वेशन 1 2 3 से। क्या आएगा इक्वेशन 1 से वैल्यू? V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। And what is the common? V is common. So what we left? 1 by R1 plus
1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है इक्वेशन 4 तक? यहां पे हमने अपना नेट करंट निकाल लिया, डन है? ओके, नाउ सिमिलरली लास्ट टाइम जैसा किया था वैसा ही कंसीडर करते हैं। व्हाट? लेट अस कंसीडर एन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या लें? एक इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं बेटा, ठीक है? एक ऐसा सर्किट जो अकेला वही काम करेगा जो तीनों काम कर रहे थे पैरेलल में, ओके? एंड लेट अस कंसीडर दैट रेजिस्टेंस एज अ आरपी। इस रेजिस्टेंस को क्या माने? आर और उसके सफिक्स में पी, कनेक्टेड विद द सेम बैटरी, वोल्टेज वी, और आपके सर्किट से टोटल करंट क्या जाएगा? आई। तो बताइए इस बार नेट करंट क्या बनेगा? I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर पी। यही बनेगा, I इज इक्वल टू वी बाय आर पी। ओके, तो I इज इक्वल टू वी बाय आर पी। तो आई थिंक मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? V divided by RP means V multiply with 1 by RP. This is our equation number 5. Okay, now please compare 4 and 5 everyone. Equation 4 और 5 को compare करेंगे बेटा. What he is saying, equation 4, total current is equal to total voltage multiply something. This is the multiply of something. Okay, यहां पे भी क्या मिल रहा है? Total current is equal to total voltage multiply of 1 by RP. So if we compare equation 4 and 5, what we got? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And this is the formula for the equivalent resistance in parallel. यानी इन पैरेलल कनेक्शन हम लोग नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उनका सम करके निकालेंगे, बट इस बार सम कैसा होगा? रेसिप्रोकल में सम होगा। इज दैट ओके? ये चीज डन आई, समझ में आई बेटा? बट एक बात थोड़ा ध्यान में रखना, इट इज द फॉर्मूला फॉर 1 बाय आरपी। ये किस चीज का फॉर्मूला है? 1 बाय आरपी। और हमारा इक्विवेलेंट क्या था? आरपी। आरपी स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट, और यू कैन ऑल्सो कॉल नेट रेजिस्टेंस। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस है, किसमें? पैरेलल कनेक्शन में। तो अगर हमें आरपी चाहिए तो प्लीज एक चीज मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं, लिसन इट वेरी केयरफुली। हमें आरपी चाहिए होगा तो आरपी के लिए हमें इसे लास्ट में रेसिप्रोकल भी करना होगा। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा, अभी हम लोग करेंगे, और 1 और 2 आप लोग अपने होमवर्क में लेके आएंगे। क्लियर है पैरेलल कनेक्शन? Anyone having issue in both the type of combination, please ये मुझे बताइए। प्लीज एवरीवन मुझे बताइए कोई इश्यू हो। आदित्य, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दैट? आदित्य, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सो आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। सो क्या हम अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे आ जाएं बेटा? ओके, so let's begin with the sum of the numericals that I have taken, और हम अभी 1-2 का प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम धीरे धीरे इसकी स्पीड और कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? So here I have a one question. एक क्वेश्चन रखा है मैंने आपके सामने, देखेंगे सारे बच्चे? दिख रहा है सबको? डन है? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ, और यहां पे हमसे टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन इज सिंपल, एवरी टाइम मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछने वाला हूं। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस between, let's suppose this is point A and this is point B. A और B के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमारे पास देखो कितने रजिस्टर्स हैं। We have 1 2 3 4 5, we have 5 रजिस्टर्स आर आउट देयर, और हमें वो कनेक्शन करके निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ओके, मेथड अलग अलग हो जाते हैं, समझने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो मैं इसे बुलाता हूं रैपिंग मेथड। क्या बुलाऊंगा मैं इसे? रैपिंग। बंद करते आना। तो अब आप सारे देखिए, आप चले ए से, इमेजिन दैट आपने अपनी व्हीकल ए से चलाई, आपको रास्ते में कौन मिला? R1 मिला, ठीक है। आप पहुंचे किसी पर्टिकुलर इस कॉमन पॉइंट पे, एक रास्ता R3 को चला गया, एक रास्ता R2 को चला गया, तो इसका मतलब आपका कॉमन एंड नहीं बचा यहां पे, है ना? करंट बढ़ गया ना। इमेजिन दैट यहां से आपका करंट जा रहा था, R1 से गया,
फिर आगे गए तो R3 के पास चला गया और कुछ R2 के पास चला गया। इसका मतलब R3 और R2 में करंट बढ़ गया। फिर R3 से आप चले, इमेजिन दैट आप R3 से चल रहे हो, फिर R3 से R4, R4 से R5, फिर यहां से R5 से आए, यहां से R2 से, और दोनों कंबाइन होके B तक चले गए। तो सबसे पहले आप कॉमन कहां कहां हो, ध्यान से देखिए, R3, R4 एंड R5। देखो मैंने आपको कहा है सीरीज कनेक्शन वो होता है जब आप एक लाइन में होते हो, बट लाइन वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्ट्रेट में ही हो। अब आप देखिए ना, R3, R3, R4 एंड R5 कैसे, एक लाइन है ना, एक सीधी लाइन है, एक सीधा रोड है। R3 से रोड जाता है R4 और R4 से R5। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले क्या हो गए, सीरीज हो गई। किस किस की सीरीज हुई, R3, R4 एंड R5। ये आप मेंशन करेंगे कि आप मेंशन करेंगे दैट वी हैव द सीरीज ऑफ R3, R4 एंड R5। ठीक है, ये तीनों हमारे पास सीरीज कनेक्शन में। ओके, तो सीरीज कनेक्शन में नेट निकाले, पहले इन तीनों को देखते हैं। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में R3, R4 और R5 का सीरीज, भाई सीरीज में कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट सम करें, किसका, R3 का, R4 का एंड R5 का। चलिए वैल्यू बताइए, R3 की वैल्यू 470 ओम, 470, प्लस R4 की वैल्यू 1K ओम। इस K का मतलब होता है किलो, इस K का मतलब क्या है, किलो ओम। ठीक है, वो जो हम नॉर्मल, तो किलो में कितना होता है बेटा, 1000। तो ये 1K ओम का मतलब ये कितना ओम हो गया, ये 1000 ओम हो गया। तो R4 की वैल्यू 1000 ओम है ना। ओके, मैंने सिंबल नहीं रखा है तो अभी सिंबल नहीं करते, सिंबल लास्ट में रख देंगे। ठीक है, सारे ओम ही है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R5, इट इज 330। सो कैन वी डू द एल्जेब्रिक सम, हमारा इन सबका सीरीज कनेक्शन क्या आया, ये हम सबका सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, इट इज RS नॉट R3 बाय मिस्टेक। ओके, सो व्हाट इज R3, द R3 इज इक्वल टू 470 प्लस 330 which would be 800, okay, and 1000 which would be 1800 ohm. So R5, sorry, RS, my mistake, it is RS, series connection. Okay, so what is the final result for all of them, इन सबका फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1800। बट ये तो इन तीनों का आया, तो हम अपने डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करें। सो वी आर गोइंग टू रीड्रॉ द डायग्राम। पॉइंट ए, फिर आता है हमारे पास R1 विच इज 1K ओम। ठीक है, फिर आता है हमारे पास R2 which is 2.2 K ohm. Okay, and this was the B. This is that terminal, ये वो सर्किट है जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, बट R3, R4 और R5 ये वाला जो हिस्सा है, इसका तो सीरीज आ चुका है ना, इन तीनों का नेट कितना आएगा, 1800। तो इन तीनों की जगह पे अपना नेट ले आते हैं, एंड नाउ आई एम चेंजिंग द कलर, दिस इज द नेट, ये इन तीनों की जगह पे लगा दिया RS विच इज 1800। डायग्राम का रीड्रॉ, डायग्राम का मॉडिफाइड वर्जन क्लियर हुआ, इन तीनों का सीरीज कनेक्शन। अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए RS और R2 के बारे में क्या ख्याल है। RS और R2 आपस में कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कॉमन। तो नाउ वी विल डू पैरेलल ऑफ RS एंड R2। ओके, पैरेलल कैसे निकालते हैं, 1/RP इज इक्वल टू जो भी हमारे इन तीनों का सीरीज का नेट आया था, RS प्लस 1/R2। R1 पैरेलल में नहीं है, देखो बेटा, R1 का कोई पैरेलल कनेक्शन नहीं है, वो साइड में है, और वो अभी तक सीरीज में भी नहीं है, तो उसको तो संभाल के रखते हैं। तो RS की वैल्यू 1/1800 प्लस R2 की वैल्यू 2.2 किलो ओम, और आप मुझे क्विकली इसकी वैल्यू बता सकते हैं, इट वुड बी 2200। कैन वी सॉल्व दैट, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 1/100 कॉमन, ओके, हमारे पास बच गया 1/18 प्लस 1/22। क्लियर है, यहां तक हमारे पास क्लियर है कहानी। अब 22 और 18 का एलसीएम जल्दी से मुझे बता सकते हैं। 22 18 सिंपल वर्जन में है, थोड़ा सा सॉल्व करने में हेल्प कर रहा हूं। ओके, 2 9 99 and multiply with 2 18 1 198. So LCM was
198। क्लियर है? ये तो आपके पास कॉमन था, ये आपके पास कितना हो गया? 198 ही हो गया ना, डन है। और अब यहां से हम लोग इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये कहानी कितनी आ जाएगी। सो हेयर वी हैव 11 प्लस हेयर वी हैव 9। सो व्हाट इज 1 by rp? The 1 by rp is equal to 20 divided by 198 multiply with 100. Can we solve? 0 0 cancel and 2 9s it would be 99. क्लियर है? तो इट वुड बी 1 by 990। तो रेसिप्रोकल करना जरूरी है बिकॉज इट इज 1 by rp। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ rp? 990 ओम। इसका मतलब इन दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन है इसका रिजल्ट आ गया 990 ओम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल रिपीट दिस क्वेश्चन। अभी हम इसी क्वेश्चन पे, अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डायग्राम को रीड्रॉ कर रहे। So we are going to redraw the diagram, and when we are going to redraw the diagram, what we are going to have? A R1 which is 1 kilo ohm, but जो हमारे पास लास्ट में था R2 और RS, इन दोनों का जो पैरेलल रिजल्ट आया वो कितना आया? That result was RP। ये RP आ गया उन दोनों का पैरेलल सॉल्व करके, कितना आया? 990 ओम। और यहां पे ये बी पॉइंट एज इट इज था। नाउ व्हाट यू कैन कंक्लूड, अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको? R1 और RP आपके साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? साफ साफ दिख रहे हैं ना, सीरीज कनेक्शन है, एक ही लाइन में है। सो नाउ द सीरीज ऑफ R1 एंड RP, ये मेंशन किया करो किसका सीरीज चल रहा है, किसका पैरेलल। तो अब फिर से रिजल्ट क्या आएगा? R1 प्लस जो भी RP आया है उसका सीरीज कनेक्शन। R1 बताइए बेटा जी कितना आया? R1 is 1 kilo ohm which is 1000, RP is 990। So what is the net resistance overall? It is 1990 ohm total। A और B के बीच में total equivalent, the net resistance between, what is that? It is the net resistance between A and B। A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस विच इज 1990 ओम। क्लियर टू दैट? आप दोनों स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ये रिकॉर्डेड में भी मिलेगा, देयर विल बी नो इश्यू इन दैट। एम आई क्लियर और नॉट? यहां तक डन है बेटा सबको? नोट डाउन दैट, आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे सॉल्व किया गया, तो साफ साफ पीछे से दिख रहा था, यहां से फोल्ड करते आना है, पहले सीरीज कनेक्शन, फिर पैरेलल हुआ, फिर उसके बाद सीरीज। और आप जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतने ही कंफर्टेबल होते जाएंगे। डन है? सो देयर आर 3 क्वेश्चंस दैट आई एम ओनली 3 क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए पुट कर रहा हूं इन अ व्हाट, फॉर अ होमवर्क। होमवर्क के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। नेट इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? डन है? देन वी हैव दिस सेकंड वन। ओके, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B? अगेन थोड़ा सा ये लेंथी है, ये वैसा ही है जैसे आप ऐड करना सीख गए तो अब नंबर ज्यादा हो गए। जैसे अब R7 और R8 कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं। R5 R6 कैसा दिख रहा है? R9 R10 फिर सीरीज है, कौन सीरीज है कौन पैरेलल, आप इसे करके जाइए। डन है? एंड दिस वन इज आवर थर्ड क्वेश्चन जो आपको मुझे बताना है। यू हैव टू गिव मी व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ओके, डन है? ओके ओके, टिल देन एनी इशू? देखो अभी इशू आएंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मोर यू विल प्रैक्टिस फॉर द सीरीज एंड पैरेलल, मोर यू विल गेट फॉर दैट।